वेलकम बैक टू द ग्रोथ एक्स बाय कुवर इस पंजाबी पंजाब तो दूर। जितने लोग पंजाब के हैं और पंजाब से दूर हैं, कैसे अपने को ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे, जो लोकल कल्चर में हम पूरे इंडल्ज हो चुके हैं। टुडे वी हैव हमराज सिंह, वन ऑफ माय गुड ओल्ड फ्रेंड। आई नो हिम अ लॉट ऑफ बेटर, बट हाँ, आज थोड़ा और उसको डीप डाइव करते हैं उनकी लाइफ में भी एंड उनके थॉट्स भी लेते हैं। क्या हाल है हमराज? बिल्कुल बढ़िया जी। हाउ आर यू? ऑल गुड एंड थैंक यू फॉर कमिंग। माय प्लेजर। एंड थोड़ा सा अपने बारे में, बी फ्रॉम वेयर यू आर। I was born in Jharkhand, Ranchi, and till 12th I was there. So my family, basically मेरी family move हो गई थी 40-45 years before. So Pakistan part of Punjab और जो उस side ਦਾ पंजाब ਸੀ लंदा पंजाब। ਉੱਥੇ ਤੋਂ we came to Jaipur and then from Jaipur we shifted to Jharkhand. So we have taken a circle. We have came back to Gurgaon. Gurgaon. So, when it's come to the, let's go for the Jharkhand first. So, when you brought up in Jharkhand until 12th, what was your area? And आपका क्या उसमें, how was your friends? How the people used to see as you sick over there? So I come from a very small town. The नाम है डाल्टनगंज। ਉੱਥੇ in the time which 50-60 sick family over. Before 84 there used to be 200-300 families, but ਹੁਣ काफी reduce हो गई है। ज़्यादातर लोग बाहर मूव कर रहे हैं, दिल्ली, पंजाब और इवन आउट ऑफ इंडिया। बट या मतलब ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 12 10 ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, 12th ਮੇਰਾ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਲਗਭਗ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਉੱਥੇ ਨॉन ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। इट वाज अ वेरी गुड सर्कल। I was about to come कि ज़्यादा हम से अपने ग्रुप्स की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं, how they used to take it being a Sikh, आपको किस तरीके से वो लोग उसमें लेते थे? आई थिंक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। दे यूज्ड टू कम विद अस to Gurudwara Sahib. We used to come, go in Mandir, other places with them in their celebrations, occasions. So I think it's a very good atmosphere otherwise. और मेरा मानना है कि छोटे शहरों में जितने भी सिख बसते हैं, सिखों में तो काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है। एंड एवरीवन बिकॉज ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ वर्ड भी ਘੱਟ ਲੋग यूज़ करते हैं, तो सरदार जी ही बुलाते। अच्छा, कोई भी मिलेगा वो सरदार जी ही बोले। ये अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। मैंने नहीं लगता है कोई भी, जब तक किसी का किरदार गड़बड़ ना हो, क्योंकि कई बार किरदार भी कुछ लोगों का नहीं ठीक होता। आई थिंक हर जगह बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। मैं तो हमेशा यही फेस करता है कि मैं जितना भी गया, बीइंग द सिख आई एम मोर रिस्पेक्टेड देन अदर्स इन द स्पेस और सर्कल। आई सो मेरा पर्पस वही है, पंजाबी पंजाब तो दूर में, हाउ डू पीपल आर इंडल्ज विद ईच एंड एवरी वन। हम सारे एक साथ हैं, क्योंकि मेरा भी पूरा आधे 90% मेरा भी जो सर्कल है वो नॉन सिख का ही है। अब उसमें मुझे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। सो व्हेन इट्स कम टू दी कल्चर से, सो हमारे कल्चर्स में बहुत चीज़ें, गुरपुरब आता है, सब कुछ आता है, और वहाँ पे नवरात्र आ रहे हैं। सो एडिशनली हाउ यू गाइस यूज्ड टू सेलिब्रेट दोस कल्चर्स? ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਲਾਰਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਮਾਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। करेक्ट। ਬਟ ਵੀ ਆਲ ਕੌਡਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ। ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ देयर आर मोर नॉन सिख पार्टिसिपेटिंग देन सिख्स। रीजन की टोटल सिख पॉपुलेशन ही होता है। so for example there are 100 people because but ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 90% ਨੌਨ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਕਦਰ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟ-ਛੋਟ ਘਟਨਾएं ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੋ 84 ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਐਂਡ ਸੋ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ 1984 ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ इश्यूज हो गए, कम्युनिकल हो गया, या किसी के अगेंस्ट पगड़ी उतार दी, वो
How frequent it used to be in Deltaganj or in देखो Jharkhand? 84 ਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਥਰਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੈਕਟਡ ਸਿਟੀ ਵਾਸ ਫਰਮ ਝਾਰਖੰਡ, ਬੋਕਾਰੋ। ਬੋਕਾਰੋ ਵਿੱਚ ਐਸ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਗਰਸ 50 ਪਲੱਸ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਸ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਡਾਲਟਨਗੰਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੇਓਸ। 3-4 ਦਿਨ ਜੋ ਫੀਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਐਂਡ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ Correct. ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਗਭਗ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। Correct. ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਚੋ ਜਿੱਥੇ 50 ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 40 ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ 100 ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। that is because people stood with the community wherever required। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਨੇ impact ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਆਈ ਮਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਲਿਟਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ during 80s and 90s Sikhs and Rajputs were few of the dominant community। ਜੋ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ predominantly they were powerful business class families in my home। So basically, if I talk about the Sikhs and Rajput, they were more in jobs or the business community? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ। this is the ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ plateau area, so this is very near to lot of national forest and other things। ਆਰਾ ਮਿਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੇੜ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹਟਦੇ ਗਏ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ both the communities were few of the most dominant in the town, which gradually decreased now because ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ obviously the scenario has changed। So that's great. More important, how I would focus on why did you choose this political analyst. So Amraj, now let's come back to the main topic, जो आपका main focused area है। You are working as public policy and political consulting। So now I just want to know, how did you get into this and why did you choose it? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੈਚਲਰਸ ਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਲਜ ਸੇਮ ਸੀ ਸਾਡਾ। मेरा BBA था, ਬਟ ਕਾਲਜ ਸੇਮ ਸੀ। ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਬੈਚਲਰਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਟੂਡੇ, NDTV, ਫੌਕਸ ਟਰੈਵਲਸ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰਸ ਮੇਰਾ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਇੰਟਰਡ ਇਨਟੂ ਜਾਮੀਆ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇयर ਵਾਸ ਲੋਟ ਆਫ projects, academic projects जो international level ਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। I worked with my professors on those projects and I realized कि this research space is what interests और बढ़िया भी लग रहा है, पैसे भी मिल जा रहे हैं, वो भी जरूरी चीज़ है। So then after my masters I was qualified for LAM fellowship। So LAM basically stands for Legislative Assistant to Member of Parliament। all over India तो कुछ 50 लोग select होंगे। अच्छा। ਔਰ ਬੜਾ ਰਿਗਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ MP ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਸ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਯੂ ਗੈਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਲਸੋ ਟੂ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਲਡ PRS ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਤੇ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ MPs ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। And then I realized I can quickly start my own work and ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। So I immediately after finishing the fellowship, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, I started doing freelance work। I started delivering projects to
these politicians. And धीरे धीरे 2018 I formed this company called Jansoch Consultancy, जो कि पूरी तरह से political campaigns, election management, and it's been 8 years. चल रही है रब की वाहिगुरू की कृपा नाल बढ़िया। चलो वो तो बनी रहनी चाहिए। हाँ जी। Now, your role as a consulting, and how did you're going to help them? What are the things you do to make them more bigger name or as a brand? देखो जी, मतलब so I have a team of around 40-45. Election the time I almost double हो जाता है, अच्छा। approximately 100 हो जाता है last few months, so those are more contractual. This is a permanent team. So this has people like cameraman, video editor, graphic designer, social media content writer, social media operators, researchers, ground activate कराने वाले लोग हैं. So basically we do 3 type of work. One is election based. So election आया, we will campaign for an individual who is contesting for MLA or an MP or for a political party. And ਉਹਨਾਂ ਦੀ branding ਕਰਦੇ ਹਾਂ. For example, ਹਿਮਾਚਲ ਅਸੀਂ state campaign ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ ਵੀ state ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ on its own. So that happened after 4.5 years. We see Shimla, I think 70-80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬੈਠ ਕੇ used to work. Okay. And everything, like I'll give you one example. So BJP ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਦਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਬਟਲ ਚਲਾਇਆ, ਰਿਵਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Okay, that's one interesting. तो वो कैंपेन बहुत हिट किया and it went really viral and everyone was talking about it. Similarly, we went a team on ground. ਅਸੀਂ ग्राउंड ਵਿੱਚ टीम भेज के ਅਸੀਂ एनालाइज किया कि वो कौन सी बात है जो लार्जर ऑडियंस को एड्रेस करे। तो हमने कहा कि हम 1500 रुपये सब महिलाओं को वहाँ दें, तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन को भी बता दें। और 1500 रुपये जो एक घर पे आ रहा है वो सिर्फ महिला के पास तो नहीं आ रहा, उसके पूरे परिवार के लिए आ रहा है। सो हमारा पर्पस ये था कि ऐसे आइडियाज ढूंढो जिस पे हम काम कर सकें। तो वो हिमाचल कैंपेन, दैट इज वन टाइप ऑफ वर्क व्हेन वी डू कैंपेनिंग। अनदर पार्ट ऑफ वर्क इज कि हम कुछ सीनियर लीडरशिप के साथ लॉन्ग टर्म काम करते हैं कि वो ऑलरेडी एक ब्रांड है बट उनको एक बड़ा ब्रांड कैसे बनाया जाए, उस पर वर्क। And fortunately we have certain good leaders in our bucket, जो कि जिनमें से 2 आज चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट के और एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। इन सब के साथ हमने 3 साल 4 साल एक लॉन्ग टर्म प्लान पे काम किया, एक हीट मैप बनाकर कि आपको किन से मिलना चाहिए, किन से इंटरैक्ट करना चाहिए, किन से आपको लिवरेज लेना चाहिए, कौन सी बात पे क्या बोलना है, कैसे मूव करना है। देखो एक पॉलिटिशियंस सब कुछ नहीं कर सकता, तो ही नीड हैंड्स। एंड आज के टाइम पे जैसे कॉर्पोरेट मार्केटिंग एजेंसी हायर कर रही है, ब्रांडिंग एजेंसी हायर कर रही है, सर्वे एजेंसी हायर कर रही है, वैसे पॉलिटिशियन भी करता है। उसको भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ कैंपेन चाहिए, सिमिलर सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग एंड ऑरा विद द कमिंग ऑफ सोशल मीडिया, एआई, डिजिटल, ही नीड्स इट। सो वी हेल्प हिम विद दैट। थर्ड स्पेस वेयर वी वर्क विद इज मोर ऑफ पॉलिसी, जहाँ हम कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वेश्चंस, रिसर्च, पार्लियामेंट की स्पीचेस ये सब बनाते हैं और इंटरवेंशंस करते हैं अलग अलग चीज़ों। जो हमारे पॉलिटिशियंस क्वेश्चंस पूछते हैं या that research work is done by you. This type of research work. This type of research. So अब जब हम लोग अपने पॉलिटिशियंस पे आए हैं, I just want to, अभी जैसे इलेक्शंस हमारे और आने वाला है, जस्ट खत्म हुए, हमारा टर्न आउट वोटर जो है दिल्ली का सबसे कम रहा है। एंड मे बी जो यंगस्टर्स आ रहे हैं दे आर लाइक वी आर ए पॉलिटिकल, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाते, या अगर जाते हैं तो बहुत फैंसी टर्म है उनके लिए, यार तो हम पॉलिटिक्स से दूर हैं। तो डू यू रियली थिंक कि वोटर शुड वोट या इंडियन वोटर शुड वोट? देखो वोटर नो वोट करना है ये तो जरूरी है, वोटर को वोट करना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड इट शुड बी इनकरेज्ड एंड प्रमोटेड। बट कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपको करना ही करना। इनफैक्ट जितने ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे कम होता है। सो इट इज़ ऑलवेज दैट इलेक्शन कमीशन प्रमोट्स द हैबिट ऑफ वोटिंग,
it promotes the culture of voting. But 100% voting कहीं नहीं है, 80% 90% भी कहीं नहीं है. Average in the, I think across the world is 60 70 75%. बट दिल्ली की आएगा 50-60. जितना अर्बनाइज्ड उतना कम. बॉम्बे की और कम होती है, बैंगलोर की और कम होती है. सो जितना अर्बनाइज्ड उतना कम है. उसका रीजन क्या है कि हम उसे एज अ हॉलीडे, विच इज नॉट दैट गुड. आई थिंक आज के टाइम पे दिल्ली में, गुड़गांव में और इन सब जगह वोटिंग के बहुत ही कन्वीनियंट हो गया. बहुत लंबी लाइन भी नहीं लगती है. बहुत ऐसा कोई वो भी नहीं है कि शेड बना होता है हर जगह. इस प्रॉपर फैसिलिटी आल्सो. अभी स्कूल्स में होता है जिसमें आपको इतना कुछ खड़ा भी नहीं होना, डायरेक्टली जाओ, फ्री होता है. बहुत इजी है. क्या सारंदा चोर है? बिल्कुल भी नहीं. अच्छा. देखो, अगर सारे नेता चोर होते तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही होती. हाँ. 70-75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में अच्छी सड़कें फिर कहीं होती ही नहीं. अच्छा रेलवे कनेक्ट होता ही नहीं. आज 100 से ज्यादा एयरपोर्ट होते ही नहीं. आज एम्स, IIT, ट्रिपल कुछ होता ही नहीं ना. सो सारे नेता चोर नहीं होते. अगर सारे नेता चोर होते तो देश चल कैसे रहा. इंडिया पे तो फिर दोबारा आक्रमण हो चुका. तो ऐसा नहीं है. देयर आर गुड एंड बैड इन एवरी स्पेस. कुछ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, जिसको अगर लॉन्गर टर्म में सुधारा जाए तो आई थिंक बहुत इम्प्रूवमेंट होगा. दूसरा मेरा एक और हमेशा पर्सपेक्टिव है कि डेवलपिंग कंट्रीज में आप अक्रॉस द वर्ल्ड देखोगे थोड़ा रेट ऑफ करप्शन ज़्यादा रहता है. क्योंकि पहली बार चीज़ें बन रही, जब बनेगी तो कुछ करप्शन उसमें हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि करप्शन होना चाहिए, बट ये एक ऐसा देखा गया, ऐसा रिसर्च, ऐसी जो भी स्टडीज़ है उसमें आता है. नहीं होना चाहिए. कॉमन मैन को ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए. ऐसे लोगों को कॉल आउट करना चाहिए. उनको वोट नहीं देना चाहिए. हमें आइडेंटिटी कल्ट में नहीं जाना चाहिए. हमें किसी को पागलों जैसे फॉलो नहीं करना चाहिए. अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें बैलेंस आएगा. सो इसमें मेरा जो आपने बोला कि हमें लेसर इविल को चूज करना चाहिए. सो इसमें मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. वन, वी हैव नोटा. ठीक है. डज नोटा रियली वर्क? फर्स्ट. सेकंड, क्या आज भी हमारे जो इलेक्शंस हैं कास्ट, रिलीजन एंड मनी पे काम करते हैं? पहला पॉइंट, नोटा इज बेसिकली एक सिंबॉलिक मैसेज कि देखो 3000 लोगों ने यहाँ नोटा दिया कि वो बहुत खुश नहीं है जितने कैंडिडेट. नोटा का पर्पस यही है कि आप किसी से खुश नहीं. दैट इज द आइडिया ऑफ इट. बट उसका कोई स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट अभी पड़ेगा ऐसा कोई इंडिया में अभी ऐसा देखा नहीं गया. ये कहीं नोटा को ही सबसे ज्यादा तो अभी ऐसे एविडेंस नहीं अवेलेबल है. बट हाँ, इट्स अ गुड. एटलीस्ट अगर हम कहते हैं कि पूरे स्टेट में 1 से 2% लोगों ने नोटा पे वोट किया तो ये बड़ी बात है. 1 से 2% बहुत बड़ा नंबर होता है काफी. और इस पे फिर सोचना चाहिए पॉलिटिशियंस को. और इस पे आगे जो पब्लिक पॉलिसी कंसल्टिंग है, जो NGOs है, जो गवर्नमेंट के साथ और एडवोकेसी ग्रुप काम करी, वो इस पर और वर्क कर सकते हैं. सो पहली चीज़ तो वो हो गई. दूसरी जो आपने कहा कि कास्ट, मनी एंड रिलीजन, वो पॉलिटिक्स में चलता है कि नहीं? बिल्कुल चलता है. अनफॉर्चुनेट है बट चलता है. एंड इसको रोकने का वही तरीका है कि हम एटलीस्ट वोट देने जाए, हम और विजिलेंट हो. जो लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं हम उनको वोट देने सिर्फ ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले जाए. उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करके जाए. एटलीस्ट उस 15-20 लोग जो खड़े हो रहे हैं उसमें अगर हम राइट कैंडिडेट को चूज करेंगे, देर आर चांसेस दैट थिंग्स विल इम्प्रूव. बाकी अनफॉर्चुनेटली इंडियन पॉलिटिक्स में, एटलीस्ट मेजर स्टेट्स में, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, उड़ीसा में कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. जब सर्वे कर रहे थे तो हमने कास्ट का क्वेश्चन डाला था एंड जो पॉलिटिशियंस था उसने कहा था कि ये क्वेश्चन हटा दो, यहाँ कास्ट की जरूरत. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन आप बिहार जाओ, यूपी जाओ, हाँ, चलता है. पंजाब में भी चलता है, दिल्ली में भी चलता है. और मनी और मसल पावर साउथ में बहुत ज़्यादा चलता है. कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स से ज़्यादा चलता है. तो दीज थिंग्स आर देयर. दीज थिंग्स हैपन ग्रेजुअली. जैसे अब सोशल मीडिया से ये इम्पैक्ट है कि हम आज के टाइम पे किसी का भी वीडियो बनाने लगते हैं, कोई हमसे ब्राइब मांग रहा है, कोई हमसे कुछ कर रहा है. तो आई थिंक दीज थिंग्स विल ग्रेजुअली इम्प्रूव एज द नेशन विल डेवलप. ये इम्प्रूव होगा. एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि अभी इंडिया बहुत टेंडर स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंस, 70 जो कि बहुत ज़्यादा नहीं. US 200 साल से ज़्यादा हो चुका है. सो एंड इट्स अ वेरी बिग नेशन. दिस इज लाइक, हमारा पॉपुलेशन इज लाइक
ऑलमोस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट। हम्म तो बहुत चीज़ों को मैनेज करते हुए एंड इतना डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स सोसाइटी, उसके बाद भी लगभग सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही है। हम्म ये बहुत बड़ी बात है। या सब जैसे हमने कहा कि बड़ी कंट्री है, चल भी रही है। मेरे पास दो क्वेश्चन आपके लिए इसमें आ रहे हैं। पहला है, जैसे हमने कहा नॉर्थ इंडिया में कास्ट सिस्टम ज़्यादा है एंड साउथ इंडिया में कास्ट सिस्टम कम है, तो दोनों के अंदर, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में पॉलिटिकली आप ऐसा क्या डिफरेंस देखते हो? ठीक है, और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी डिबेट है, हिंदी वर्सेस ऑल स्टेट ऑल लैंग्वेजेस, तो पहले उस पे आता है कि नॉर्थ इंडिया पॉलिटिक्स वर्सेस साउथ इंडिया पॉलिटिक्स। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि साउथ में कास्ट कम है, मैंने कहा साउथ में मनी पावर पावर ज़्यादा है, ज़्यादा है। वहाँ का इलेक्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। नॉर्थ में भी है, तो मेजर डिफरेंस इन सोसाइटी, डिफरेंस इन सोसाइटी ये है कि वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो साउथ के 4-5 स्टेट्स हैं उनमें नॉर्थ से बेटर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके बेसिस पे मेजर होता है? एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड। सो साउथ ने आउट परफॉर्म किया नॉर्थ स्टेट्स। आप देख लो, सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा? बैंगलोर, हैदराबाद। बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरला। एंड पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है केरला से। हम्म सो दे हैव परफॉर्म्ड वेल, दैट इज वन थिंग। जो आपका सेकंड पॉइंट है, लैंग्वेज डिबेट जो अभी चल रहा है, तो दैट इज बेसिकली साउथ इंडियन स्टेट को ऐसा फील होता है कि हम पे हिंदी इम्पोज किया जा रहा है, जो कि कुछ हद तक कई लोग सही भी कहते हैं। उसका कारण है कि क्योंकि हिंदी के अलावा बाकी लैंग्वेजेस पे सरकार की स्पेंडिंग उतनी ज़्यादा है, तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि सरकार से हिंदी प्रमोट यूनिक करो, क्योंकि बाकी लैंग्वेज पे तो स्पेंडिंग ज़्यादा है। मतलब पंजाबी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तमिल को प्रमोट करने के लिए नहीं है, तेलुगु को प्रमोट करने के लिए नहीं है, मलयालम को नहीं है। सो दैट इज वाई दिस फाइट इज देयर। दूसरा, तमिल वर्ल्ड का सबसे पुराना लैंग्वेज, आई थिंक संस्कृत से भी ज़्यादा पुराना है, प्लस उनकी पूरी लिपि डिफरेंट है। उनका पूरा संस्कृत से हिंदी इवॉल्व हुआ, बट तमिल बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में लिखा जाता है। तो वो बिल्कुल ही टू डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तमिल, आई मस्ट अप्रिशिएट एंड अदर सदर्न स्टेट्स कि वो अपने लैंग्वेज मदर टंग को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैंड लेते हैं। कंपैरेटिवली आप पंजाब में देखो, कम है स्टैंड लेना। आज हम इंग्लिश और हिंदी बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो कम उस हिसाब से सदर्न स्टेट्स आर मोर प्रो व्हेन इट कम्स टू देयर मदर टंग, देयर लैंग्वेज, एंड दैट इज व्हाई दे फील कि आप जितना हिंदी प्रमोट कर रहे हो, आप उतना ही हमारे लैंग्वेज को करो। अगर आप हमारे लैंग्वेज को करोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी भी एक लैंग्वेज है, उसको भी आगे बढ़ाओ, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो प्रमोट अदर रीजनल लैंग्वेजेस विच आर टेक्निकली ऑल इंडियन ओरिजिन लैंग्वेजेस। तो वो कोई बाहर से आया हुआ लैंग्वेज नहीं, वो भारत का की अपना भाषा है। Hamraj, AI is getting into every field. So how do you see AI and data is affecting your industry, or how it is helping your industry? बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जैसे? एंड सबसे पावरफुल एंड डेंजरस भी इम्पैक्ट भी हो सकता है। अच्छा। हाउ आई टेल यू, आप वोटर मैपिंग कर सकते हो, वोटर के बिहेवियर पैटर्न को समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दैट कुकीज एंड बाकी चीजें कि हम गूगल पे जो बोलते हैं हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आवर गूगल वॉइस ट्रांसलेटर एंड एवरीथिंग इज ऑन, तो वो कैच हो जाता है, वैसे ही एड्स आने लगते हैं। सो पॉलिटिक्स में भी तो सिमिलर यूज हो रहा है ना, एआई का, डेटा का, बाकी चीजों का। वोटर मैपिंग के लिए यूज हो रहा है, वोटर माइंड एनालिसिस के लिए यूज हो रहा है, डिजिटल इम्प्रिंट के लिए यूज हो रहा है। सो दिस विल ऑल्सो मेक पॉलिटिशियंस aware or understand what content should they produce, what should they speak, how should they speak, what campaigns should they run, and उसमें AI का बहुत बड़ा रोल हो रहा है, ऑलरेडी चल रहा है और बहुत बड़ा रोल आने वाला है। AI से आजकल तो क्लोनिंग हो जाती है, फेस वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाता है, फेस चेंज हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी स्केरी। बिकॉज इलेक्शन के टाइम पे अगर आप किसी पॉलिटिशियन को कोई ऐसी वीडियो निकाल दो जो फेक है, या ऐसे दो लोगों का कॉल पे बात करते हुए सुना दो AI जनरेटेड,
करेक्ट। क्योंकि थोड़ी सी किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी और नेताओं की सारी वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब पे डले हुए हर जगह है, बहुत उसको सारे। लेकर आप वॉइस ट्रेनिंग करके आप उसको मिसयूज कर सकते हो। तो एआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग जो आ रहा है, जिससे हमारे काम बहुत आसान होंगे, हमें बहुत हेल्प मिलेगा अपने डे टू डे वर्किंग में, बाकी चीज़ों में। बट एट द सेम टाइम इट शुड बी डेल्ट विद कॉशन, क्योंकि इसका मिसयूज भी उतना ही होगा। एंड आई ऑलवेज से कि इंडिया में डिजिटल लिटरेसी का पेनिट्रेशन इस लेवल पे नहीं है जितना डिजिटल पेनिट्रेशन। तो आज हम सबके हाथ में आईफोन है, फोन है, बट सबके हाथ में व्हाट्सएप और फेसबुक के बियॉन्ड फोन चलाने का अंडरस्टैंडिंग चला। तो और व्हाट्सएप पे आया हुआ हर कंटेंट को वो सही मानते हैं। स्पेशली से पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 40-50, थोड़ा रूरल सेगमेंट में, थोड़ा अर्बन में भी ऐसा है। तो वी हैव टू बी रियली कॉशियस विद। सो लाइक अभी जैसे हमने बोला क्लोनिंग हमारी हो रही है, इंडस्ट्री समझ सकते हैं उस चीज़ को कि हाउ द ट्रेंड्स आर, ठीक है ना। ओके, व्हेन इट्स कम टू दिस योर पार्ट कि जैसे आपने एग्जांपल बोला कि यार क्लोनिंग होके कोई भी एक वीडियो बाहर आई, ऐसे कोई एग्जांपल आपके पास जिसमें से आपने अपने क्लाइंट को या अपने किसी पॉलिटिशियन को आपने उसके इमेज बिल्डिंग की है आफ्टर दिस काइंड ऑफ इशू, या वैसे कोई एग्जांपल? देखो, ऑल ओवर इंडिया में अभी लास्ट इलेक्शन में तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, 2-3 बड़े फिल्म स्टार्स हैं जिनके वीडियो एआई से बने कि डोंट वोट फॉर बीजेपी, डोंट वोट फॉर बीजेपी। फिर इन एक्टर्स को क्लैरिफाई करना पड़ा कि हमारे वीडियोस नहीं थे, वो एआई जनरेटेड वीडियोस थे। सिमिलरली फ्रांस के वन ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उनका किसी बार में डांस करते हुए वीडियो बन गया था, जबकि उनका था ही। तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं बीच बीच में। और मैं तो ऐसे मजाक करता हूँ कि जैसे आप देखते होंगे कई होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में, बैनर्स में जो नेता फैमिली लेगेसी से आते हैं उनके फादर का या उनके मदर की फोटो होती है ग्राफिक्स में। तो अब वो एआई से वो अपने फादर की स्पीचेस को नए तरीके से आपके पास लेकर आए। ऐसे कई एग्जांपल्स भी हुए हैं। अच्छा। बिकॉज अगर वो उससे ज्यादा, उस नेता से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे अपने टाइम, सो इवन दैट इज हैपनिंग। सो एआई का बहुत ज्यादा यूज है अभी, अप टिल व्हाट, अभी जितने इलेक्शंस हुए हैं देयर इज अ कंफ्यूजन कि एआई क्या कर सकता है, बट ग्रेजुअली देयर विल बी इंक्रीज यूज ऑफ एआई। एंड व्हेन इट्स एआई एंड डिजिटल अगर हम बात करते हैं, तो हाउ मच डू यू थिंक कि हमारा जो इस टाइम पे डिजिटल चल रहा है पूरा, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा डिजिटल को यूज कर रही है, कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है? सी द विनर इज ओनली बीजेपी, द वन हु इज रूलिंग द गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया। सो मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट टेक सेवी पॉलिटिशियंस ऑफ द कंट्री। जब लोग सोच भी नहीं रहे थे तब उन्होंने अपने अकाउंट्स बना के ट्विटर, फेसबुक, उससे पहले भी जितने प्लेटफॉर्म्स थे उस पर काम शुरू कर दिया। BJP as a party also moved first, jumped to WhatsApp, every other platforms. They are on the advantageous position. So 2014 election was first digital campaign election. Proper digital. प्रॉपर डिजिटल कैंपेन। इस टाइम पे जो हमारे सबसे ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, सबसे पुरानी, उसका रिवाइवल भी हो सकता है जिस सिचुएशन में अभी है? देखो, सत्ता पे जीवन भर तो कोई नहीं टिका रहेगा। आज ये है तो कल ये कौन सोचता था कि कांग्रेस चली जाएगी। टाइम complete India was ruled by Congress. Correct. Now, when it's come to the Jan Soch, how do these politicians, what type of marketing the politicians mostly do, and how they are doing, and how do Jan Soch helps? देखो, मैंने आपको जैसे शुरू में भी बताया कि 3 टाइप ऑफ स्पेस में हम काम करते हैं। उसमें इलेक्शन में सिमिलर होता है, कैमरामैन पॉलिटिशियन के साथ जाता है, उनको सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करानी होती है। जब से ये रील का क्रेज बढ़ा है, तो ये रील का क्रेज सिर्फ बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं बढ़ा है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स के लिए बढ़ा है। सो वो सोशल मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म राइट नाउ व्हिच पॉलिटिशियंस आल्सो इज एडिक्टेड टू आल्सो। और उसके अलावा हम लोग लार्जर डेटा पॉइंट पे उनको स्टडी करके भी देते हैं कि जो आपने पूछा कि वेरियस कास्ट, वेरियस रिलीजन, वेरियस सब कैटेगरी ऑफ वोटर्स वो कैसे वोटिंग करेंगे इस बार, उनके ओपिनियंस क्या है, उनका माइंडसेट क्या चलता है। सो वी डू लॉट ऑफ सर्वेस। उसके बाद कैंपेन बिल्ड करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे अभी हिमाचल का एक एग्जांपल दिया, मैं आपको एक और छोटा सा एक असेंबली का एग्जांपल देता हूँ कि वो पूरा राजस्थान का एक असेंबली है लाडबन, तो पूरा जाट लैंड है।
इट्स डोमिनेटेड बाय जाट। तो वहाँ से हम लोग कांग्रेस कैंडिडेट के लिए कर रहे थे जिनका नाम है मुकेश भागड़, क्योंकि जाटलैंड है तो थोड़ा लार्जर देन लाइफ इमेज होता है, तो हमने उनका टैगलाइन दिया सबसे धाकड़ मुकेश भागड़। तो वो वहाँ पे बहुत चला, हर गाड़ी के पीछे उनके साथ घूमने वाले लड़कों ने लगा रखा था स्टिकर, सबसे धाकड़ मुकेश भागड़। सो जगह जगह के हिसाब से एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द अवेलेबिलिटी वी डू कैंपेन्स। हमने कांग्रेस के तरफ से जब हिमाचल कर रहे थे और हमने गारंटीज वहाँ पे जब, तो कांग्रेस आ रही है गारंटी ला रही है, तो इस टाइप के कैंपेन्स चले। फिर हमने, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी, तो छत्तीसगढ़ में किया, अब हिमाचल में करेंगे। तो इस टाइप के कैची थिंग्स आपको करना, करेक्ट कीवर्ड्स यूज करना, करेक्ट तरीके से जो ऑडियंस के माइंड में हिट करे वो बातें करना, तो वो कैंपेन्स रेगुलरली चल रहा था। दूसरी पार्टी कुछ डाल रही है, वी आर रिप्लाइंग टू इट, फिर हम कुछ डाल रहे हैं, रिप्लाइंग टू। और आज के टाइम पे जो एक बहुत बड़ा एड ऑन है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसा लग रहा है और कंसल्टेंसीज में उनको बोल रही है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत बड़ा है। सिमिलर टू हाउ इट हैपेंस इन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट के लिए तो बहुत सारी कंपनीज एस्टैब्लिश हो गई जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो सिमिलरली we also reach out to a lot of influencers, local influencers, small influencers in a constituency, in a state, और उनसे भी कंटेंट पुश करवाया जाता है। अच्छा, आप तो देखोगे कई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स है या सीएम्स हैं जो स्टेट इलेक्शन में कई इन्फ्लुएंसर्स को बुला के मिलते हैं। तो आज के टाइम पे बिकॉज डिजिटल पावर इतना बढ़ता जा रहा है कि नो वन कैन बी आउट ऑफ इट। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ वेरी बिग स्पेस व्हिच इज गेटिंग क्रिएटेड। सर, एंड जैसे भी आपने बोला कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर इसमें खट्टर साहब थे पहले, उन्होंने एलविश यादव को बुलाया था उस पर, तो वो चीज़ एक इसमें आया। मध्य प्रदेश के सीएम, लास्ट सीएम जो थे शिवराज जी, उन्होंने भी कई इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया। सो डू यू थिंक कि इन्फ्लुएंसर्स डू इन्फ्लुएंस इन फेवर ऑफ पॉलिटिशियंस? परसेप्शन बिल्डिंग तो कर लेते हैं, प्लस इतना बड़ा उनका फॉलोअरशिप है, एटलीस्ट एक ब्रॉडर परसेप्शन देना। देखो, आपको ये बात समझनी होगी कि 3 टाइप के वोटर्स, एक होते हैं जो कट्टर एक पार्टी के, एक होते हैं जो कट्टर दूसरे पार्टी के, मैं बात करूं जहाँ 2 पार्टी इलेक्शन, और तीसरे होते हैं स्विंग, जो कहते हैं कि हम देखेंगे हम क्या, जो स्विंग करते हैं डिपेंडिंग ऑन द अदर एक्सटर्नल। कैंपेनिंग सही पूछो तो सिर्फ उतने लोगों के लिए एक्सटर्नल, जो कट्टर बीजेपी वाला है वो बीजेपी को वोट देगा ही, जो कट्टर कांग्रेस वाला है वो कांग्रेस को वोट देगा, जो बचे हुए 30-40% उनको ही इन्फ्लुएंस किया जाता है सारे कैंपेन से। सो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए इट्स अ कॉमन कम्युनिकेशन कैंपेन अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप 7-8 बार किसी को अलग अलग मेथडोलॉजी से, टूल से, वेज से रीच करते हो, तो देयर इज अ हाई चांसेस दैट दे माइट वोट इन योर फेवर और दे माइट मूव इन योर फेवर। सो इसलिए कैंपेन जरूरी। आपका अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपने किया, एंड इट टर्न आउट टू बी वेरी बेस्ट, कुछ आपने एक्सपेरिमेंट किया, एंड एक वर्स्ट कि आपने किया, आपकी जो कैलकुलेशन थी काफी अच्छी जगह पर हुआ नहीं। पॉलिटिकल कंसल्टिंग इज आल्सो वेरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और यहाँ कई चीजें हमें हिट एंड ट्राई में से करनी पड़ती है क्योंकि इट्स अ 10 ईयर 12 इयर्स ओल्ड स्पेस, बहुत पुरानी है इंडस्ट्री नहीं। तो हिमाचल में मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हुए जो बहुत इंटरेस्टिंग थे। हिमाचल वी वर डूइंग द फर्स्ट और राजस्थान में मैंने काफ़ी काम किया है और बहुत इफेक्टिव रहे वहाँ के कई कैंपेन्स। हमने 60,000 प्लस वर्कर्स की मैपिंग की थी। अच्छा, जो पार्टी के वर्कर थे, और 2000 से ज़्यादा बूथ था उस लोकसभा में, और हम एक एक बूथ तक मैपिंग करके गए थे, और लगभग हमारे पास, आप सोचिए, एक लोकसभा में 60 to 70,000 वर्कर्स ऑलरेडी थे। उनको एंगेज करना, उनको बिल्ड करना, उनके साथ काम करना और इफेक्टिव लेवल पे माइक्रो मैनेजमेंट वहाँ पे हुआ था। देखिए, मैं आपको पार्लियामेंट के एक दो एग्जांपल दे देता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चन हमारे मिले। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन हमने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पुट हुआ था कि इंडिया में आज तक, उस टाइम 8 साल हुए थे इस गवर्नमेंट को, कितने लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया और कितने लोगों को मिला। तो 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, 7 लाख लोगों को मिला था। द फिगर इज 0.33%, व्हिच इज लेस देन 0.5%। सो ये फिगर वो क्वेश्चन से बाहर आया। तो ऐसे करके बहुत सारे इंटरवेंशन हम लोग डालते हैं, बट दीज आर इन द नेम ऑफ एमपीज। वो तो उसमें ही कई होता है, वो के लिए वी आर वांट टू टेक दैट क्रेडिट, बट वी पुट लॉट ऑफ सच क्वेश्चंस व्हिच क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी इन द सोसाइटी। सो जैसे भी आपने क्वेश्चन का बताया एग्जांपल कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने को जॉब मिली, हाउ मच डू यू थिंक इट हैव मेड इफेक्ट? यहाँ से कुछ इफेक्ट आया था आगे जाके पॉलिसी में? ये सारे चीज अफेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट चल रहा है, पूरा देश देखता है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन को देखता है, ऑपोजिशन फिर इन मुद्दों को उठाती है, तो
these are check and balance and how the government works. तो इस check and balance के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, and this is the how the parliament functions across the world. हर जगह ऐसा होता है, हर जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर जगह डिबेट्स होते हैं, और उससे एक निष्कर्ष निकल के बिल्स बनते हैं, पॉलिसीज पास होती है, ये काम होता है. 4 good things about the Modi government and 4 bad things about the Modi government कि उनकी पॉलिसी कहाँ फेल हुई, कौन सी पॉलिसी उनकी अच्छी है. आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाओ तो अगर उन्होंने करोड़ों टॉयलेट्स बनवाए, अब उसमें कोई कमी निकाल सकता है कि ये कम हो गया, वो कम हो गया, या थोड़ा करप्शन हो गया, मानते होता, बट करोड़ों टॉयलेट बनवाए ना, यानी कि बनवाने की जरूरत थी ना, यानी कि उस गरीब के घर में टॉयलेट नहीं था. तो जिसके घर में टॉयलेट आया, जिसके घर में गैस सिलेंडर आया, जिसके घर में पहली बार पक्का मकान मिला, वो इन्फ्लुएंस होगा. पहली बार बैंक अकाउंट खुला, वो इन्फ्लुएंस होगा. सिमिलरली जैसे मनरेगा आया, मनरेगा कांग्रेस के टाइम में आया, तो उसमें लाख कमी निकाल लो, बट आज तक पूरी दुनिया में उससे बेहतरीन मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कीम पूरे वर्ल्ड. अच्छा, तो मैंने आपको 3-4 अच्छे उदाहरण बता दिए बीजेपी गवर्नमेंट के भी, दैट व्हाई द थिंग्स दे हैव डन गुड. और आई थिंक थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के स्पेस में उन्हें और काम करने की जरूरत है, बिकॉज कोविड भी आया पीछे, और कुछ उनकी इकोनॉमिक मूव्स मैं कहूँगा बहुत अच्छे नहीं रहे, जिस कारण से इकोनॉमी भी थोड़ी इम्पैक्ट हुई. बट देखिए, एक बात हर किसी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी सरकार देश के विरोध में काम नहीं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार हो. सो वी ऑलवेज कॉल इट इट्स अ पॉलिटिकल इकोनॉमी. सो politics and economy and the society works together, but it is a fact that no government is there to sell the country to the outsiders. Right? So let us be very clear with this, that politicians are not there, बाकी चीजें चलते रहे. So let's suppose कि हमारे पास ये जो policies हम जो गवर्नमेंट बना रही है, while making these policies, what kind of things they take care and वो किस बेस पे बनाती है and कैसे बनाती है? सर, ये कोई भी पॉलिसी बनाने के पहले ऐसे रैंडम भी नहीं बनता, बहुत बड़ा रिसर्च होता है, सर्वे होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, पब्लिक से डिमांड भी कई बार क्रिएट होती है, उसके बाद पॉलिसीज बनती है. हर 10 साल में जो सेंसस होता है, जो इस बार वाला थोड़ा डिले चल रहा है, तो उस सेंसस में ये सारा डेटा का एनालिसिस होता है कि माइग्रेंट पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन क्या है, लेबर कितने हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड कितने हैं, हेल्थ पैरामीटर्स पे होता है, और कुछ कुछ छोटे लेवल पे भी सर्विस होते रहते हैं. बेस्ड ऑन दीज थिंग्स बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, बहुत एनालिसिस होता है, कई बार एक्सपर्ट ग्रुप्स है उनको बुलाया जाता है, और उसके बाद कोई भी स्कीम है पॉलिसी. So हमराज, let's हमने जो एग्जांपल अभी ले रहे, तो हाउ डू वी मेक, तो एग्जांपल है आपके पास कि कोई ऐसी पॉलिसी जो डिमांड आई, या फिर उसकी जो एज पर डेटा उनको लगे यार इसके ये पॉलिसी में नीडफुल है, कैसे कर सकते हैं? जैसे आरटीआई जब आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो कई एडवोकेसी ग्रुप, कई एनजीओज ने, खास करके राजस्थान से ये ज़्यादा शुरू हुआ था, ने ये डिमांड किया कि हमें हक है ये जानने का कि हमारे पैसे का एक्सपेंडिचर कैसे होगा. कोई भी इंडिविजुअल एक आरटीआई के थ्रू जान सकता है इसे. तो बहुत इस पे वर्किंग हुई लोअर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, और कई बड़े प्रोटेस्ट हुए, कैंपेन्स हुए, और फिर जाके गवर्नमेंट ने इसको, उन सब प्रोटेस्टर्स को, उन सब जिन लोगों ने सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि आप नहीं ला रहे, साथ बैठा के ऑन टेबल ला के आरटीआई पे वर्क किया और आरटीआई को पास किया. अनदर एग्जांपल, निर्भया रेप केस के बाद पूरी दिल्ली वाकई में, पूरा देश वाकई में उससे, उसके बाद जब लॉ को चेंज करने का डिमांड आया, कई चेंजेस जो नए आए वो उसके बाद आए, और ये एज पर पब्लिक डिमांड आते हैं, एज पर सोसाइटियल डिमांड आते हैं. ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बहुत लॉ नहीं थे पहले, कोई लॉ ही नहीं था पहले, वो कुछ समय पहले आया, वो भी कई एडवोकेसी ग्रुप ने इस पे आवाज उठाई, बात की कि ट्रांसजेंडर भी बहुत बड़ी कम्युनिटी, इन पे कोई कानून. अभी इंडिया में एक सबसे बड़ा वर्ग क्रिएट हो रहा है, विच इज गिग वर्कर्स, जो उबर, ओला, डिलीवरी, इसका, तो इसमें एक प्रॉपर लॉ नहीं है. लास्ट अभी जो बजट सेशन आया उसमें कुछ प्रोविजंस आए, ग्रेजुअली इसमें भी आएगा. तो डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड के साथ वो चेंजेस होते हैं. अब एआई पे लॉज आएंगे, डिजिटल स्पेस पे आए हैं. डिजिटल स्पेस आज से 15 साल 20 साल पहले तो उसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था. एआई पे तो कोई कानून, टाइगर ब्रॉडकास्टिंग में भी नहीं था, बिटकॉइन नई चीज आई, उस पे कोई रेगुलेशन नहीं. तो ये सब विद टाइम आते हैं, विद डिमांड आते हैं, विद सप्लाई आते हैं. दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स. एंड उस पे पूरी रिसर्च होके, एंड दैट रिसर्च इज बी टेकन केयर बाय द, अच्छे रिसर्च होते हैं, कई बुरे रिसर्च होते हैं. देयर इज ऑलवेज अ जोक, व्हेन द टाइम फॉर बैड आइडिया हैज केम, नो वन कैन स्टॉप. गुड आइडिया का पता नहीं, वो आएगा बट दिस इज अ फैक्ट दैट व्हेन अ टाइम फॉर बैड आइडियाज केम,
इन द माइंड्स ऑफ पॉलिटिशियन, वो तो आता है, एंड वो आएगा तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा. हो जाता है. सो आई गेस काफ़ी सारा अभी हमारे पास आया हुआ है एंड डेफिनेटली वेट फॉर द कमेंट्स. एंड अगर होता है तो उसके बाद आपको दोबारा कॉल अप करूंगा मैं इसके ऊपर, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग पीपल नाउअडेज आर कि जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो दे फील कि हाँ एक पैशनेटली वो लोग बात करते हैं एंड इट इज़ गुड कि लोग पैशनेटली बात कर रहे हैं. सो आई होप कि आप सबको एक अच्छा इंसाइट मिला होगा एंड हाउ डू पॉलिसीज आर मेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डू वोट फॉर इट, बिकॉज जो मुझे लगता है कि अगर पहले वोट नहीं करते हैं उसके बाद लोग क्रिप भी करते हैं. हाँ. So I'll just add 1 or 2 points at the end कि 2 चीजें हमेशा समझ करो कि जैसा कि आपने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किधर है. तो सी पॉलिटिशियंस को इंडिया में बहुत एक प्रॉब्लम है कि हम माई बाप समझते हैं, हम कहते हैं यही माई बाप, और वैसे ही हम बिहेव भी करते हैं. बट हमें पॉलिटिशियंस को सर्विस प्रोवाइडर समझते हैं. आपको एयरटेल की सर्विस नहीं अच्छी लगती, आप जियो पे शिफ्ट हो जाओ. आपको जियो की सर्विस नहीं अच्छी लगती, आप वोडाफोन पे शिफ्ट हो जाओ. बट हम जब इनको सर्विस प्रोवाइडर समझेंगे तो जिसका नेटवर्क अच्छा नहीं आएगा, हमारा जिसका इंटरनेट नहीं अच्छा चले, नेटवर्क नहीं, हम उसको चेंज. तो सिमिलरली जो अच्छी पॉलिसीज नहीं ला रही होगी, जो सरकार अच्छा काम नहीं करती होगी, जो पब्लिक के हित में काम नहीं कर रही, हम उसको चेंज कर दें. बट हम एक कैटेगरी ऑफ पीपल है जो माई बाप समझ लेते हैं, और एक कैटेगरी ऑफ पीपल है जो क्या फर्क. तो ये 2 कैटेगरी, दोनों ही कैटेगरी खराब है. जो पहली कैटेगरी है उसमें हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी का फैन नहीं, हमें किसी को एकदम पागलों की तरह फॉलो नहीं. पॉलिटिशियन है वो सर्विस प्रोवाइडर. अगर हम ये मान के चलेंगे, अगर हम ये रिलेशनशिप रखेंगे विद पॉलिटिशियन, तो इट्स अ मोर प्रोग्रेसिव थॉट एंड वी विल मूव अहेड इन अ राइट. So I guess it was a bit deep even for me. You should vote, and I guess next हमारा बिहार है, बिहार and बिहार है, तमिलनाडु. so this is a request for mainly for the youngsters कि do vote and बाद में trip नहीं करना about policies. So do vote, and if you have any question on the policy part, so definitely you can connect with Hamraj, or maybe you can drop your comments below and we'll pick up in the next video. Yeah, चलो. Thank you so much.